And in contrast, another issue, another bail issue. The Supreme Court has denied bail to activist Umar Khalid and Sharjeel Imam in the 2020 Delhi riots conspiracy case. Umar Khalid and Imam had moved the Supreme Court challenging the Delhi High Court's September 2nd order last year that denied them bail in the larger conspiracy case. However, the Supreme Court granted bail to Gulfisha Fatima, Miran Haider, Shifaur Rahman, Mohammad Salim Khan, and Shadab Ahmed. During the hearing, court noted that Umar Khalid and Sharjeel Imam stand on a qualitatively different footing, both in terms of prosecution and evidence. The top court added that it was not adopting a collective approach to the applications as it was necessary to examine each appeal independently, as the record discloses that all the appellants do not stand on equal footing as regards to culpability. While denying bail to the duo, the top court also noted that liberty for bail is different in context of national security. Your first reaction to today's verdict and key takeaways from today's Supreme Court judgment, according to you? See, it's a very, very fair verdict. In fact, the reasoning given by the Honorable Supreme Court will enlighten us in all other cases, because this is a landmark judgment. This judgment has paved way and given clarity in how the UAPA Act has to be applied in various matters where there are accused who are languishing in jail for a considerable period of time. The key takeaway is that Supreme Court has very clearly held that delay is not a trump card. People who have done overt act, who have challenged the sovereignty and integrity of the country, they cannot be enlarged on bail only on the ground of delay. So delay is not a trump card. The gravity of the offence, their conduct, the evidence available against them has to be seen, and only thereafter it has to be decided whether bail is to be granted to them on the touchstone of 21 rights or not. कंसर्न ये है कि कुछ भी जो भी कहना चाहते हैं वही कह दीजिए। कुछ नहीं कहना है, जो जजमेंट आ गया वो आपके सामने है, उसमें क्या कहने की जरूरत है। तो 5 लोगों को 7 में से बेल दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमारी क्लाइंट गुलफिशा फातिमा जो हैं, एंड मैं कहना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का, जिन्होंने इनको केस किया, इनको बेल दी है 5.5 साल के बाद। अब हमें उम्मीद है कि ट्रायल कोर्ट इनको जल्दी से जल्दी रिलीज़ ऑर्डर कर देगा बेल जेल से। उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल खारिज करते हुए कि केस जल्दी से जल्दी चलना चाहिए, और अगर 1 साल में सारे प्रोटेक्टेड विटनेस जो होते हैं, अगर वो उनका एग्जामिनेशन ख़त्म नहीं हुआ तो 1 साल बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम बेल के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। 2 लोगों को बेल नहीं दी है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन 5 लोगों को बेल देना ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि नहीं देनी चाहिए। अगर उनको बेल दी जाती है तो हम 15 सनातनियों के जिनके बेटे और भाई मारे गए हैं, उनको भी फांसी देने जैसा काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं आगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में रेगुलर सुनवाई के दौरान इनको कम से कम सजा दी जाए, तो मौत की सजा देना आवश्यक है, जो आगे भविष्य में इस तरह के दंगे ना हो। मैं सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं और तहे दिल से शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपने लॉयर्स का, जिन लोगों ने, सलमान साहब का, बिलाल का, और जितने भी लॉयर्स हमारे साथ इन्वॉल्व थे, और जो लोग दुआ कर रहे थे शिफा के लिए, उनके दोस्तों का, उनके मिलने वालों का, जानने वालों का, पड़ोसियों का, हर एक इंसान के हम शुक्रगुजार हैं, स्पेशली अल्लाह ताला के, कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को, जो हमारी सुबह का जो आगाज हुआ वो इतनी बड़ी खुशखबरी के साथ हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं एक तकलीफ भी है, 7 में से 5 लोगों को बेल मिली है, तो जिनको 2 को नहीं मिली, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए भी आगे राहत का सबब बने। जुडिशरी पे हमको पूरा यकीन था कि इंशाल्लाह उन्हें इस बार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, और वही हुआ कि आज उनको जमानत मिली है, इसलिए हम बहुत खुश हैं और बयान नहीं कर सकते, स्पीचलेस हैं, क्या बोले हैं इसके लिए, क्योंकि खुशी इतनी है। अन्य कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। कोई भी दंगाइयों को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए,
ये कांग्रेस का राज था जब दंगाइयों को बकायदा पुरस्कार दिए जाते थे, दंगाइयों को राज्यसभा में, लोकसभा में मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दंगाई जेलों में ही रहेंगे। ये सख्त मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। किसी भी दंगाई को किसी भी तरीके हुड़दम मचाने की और बेकसूर लोगों की जान लेने का अधिकार नहीं है। मुझे दुख और खेद इस बात का है कि इस तरह के फैसले अगर 1984 में आए होते तो ये कभी भी उसके बाद कोई देश में दंगे ना होते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस विधानसभा के भी कुछ लोगों ने शर्जील इमाम के साथ मंच साझा किया है। उन सब को और उनके दलों को माफ़ी मांगनी चाहिए देश और दिल्ली की जनता से। सरकार का विरोध करने की अनुमति मिल सकती है। समाजवादी पार्टी समझती कि ये ज़रूर है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सज़ा के लंबे समय तक जेल में रखना वो उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अन्य आरोपियों को बेल दी है और समाजवादी पार्टी समझती कि दिल्ली का दंगा वो एक जघन्य अपराध था, लेकिन किसी को बिना सज़ा के लंबे समय तक जेल में रखना, या तो उसमें ट्रायल हो जाता और ट्रायल के बाद जो भी आरोपी हैं जिनको भी माननीय न्यायालय सज़ा देती, उसके बाद वो लंबे समय तक जेल में रहते। इन जो लंबे समय तक जेल में है, बिना ट्रायल के जेल में है, उसको लेके ज़रूर सवाल उठ रहे हैं। And now listen to what Sharjeel Imam said about the chicken neck of India, the sensitive corridor of land that connects northeastern states to the rest of India. पहले भी शायद कर चुका हूँ। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक ही नहीं। जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम नहीं चीज है। लाठी खाने की कला भी सीखना है, समझ रहे ना। इस तरह कम चोट पड़े, इम्पैक्ट कम हो, पहन के क्या आना चाहिए, समझ रहे। एक पट्टा हो बीच में, जब तक ये सब नहीं करेंगे सब, हाँ भाई जब तक ये सब नहीं करेंगे सारा बेअसर रहेगा। ये चिंगारी कहाँ जाएगी, आग कैसे लगेगी। आग लगाने के लिए 2 काम करना होगा, लाठी खाने के लिए तैयार रहना होगा, नंबर 2 ऑर्गेनाइज होना होगा। बोल रही है कि जंतर मंतर को जमा होकर रोना गाना करते रहो, आप उनको 2 टूक में जवाब दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। 2 जो स्टेप्स हैं उनको क्लियर रखना चाहिए। एक है कि सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस व्हाटएवर, और दूसरा है प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन किसी के पास नहीं, सब सेंसिटाइजेशन की ही बात करते हैं। सेंसिटाइजेशन तो यकीनी तौर पे करना है हमें, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन भी पैरेलल में होना चाहिए कि अगर हमारे पास क्रिटिकल मास जमा हो चुका है लोगों का तो उनसे क्या किया जाए, क्या करवाया जाए, क्या कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे पास जामिया में 10,000 जवान लड़के हैं तो वो क्या कर सकते हैं। मुस्लिम स्टूडेंट नाम से प्लेटफॉर्म बनाए ताकि हम लोग यही सब 2 हफ्ते से यही कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश और हमारी आरज़ू ये है कि दिल्ली में चक्का जाम हो, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के जहाँ जिस शहर में मुसलमान कर सकता है, मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकते हैं, ठीक है। गोल क्या है, हम चक्का जाम करना चाहते हैं। हम दिल्ली के मोहल्लों में दूध बंद करना चाहते हैं, पानी बंद करना चाहते हैं। खुल के बोलिए यार,